Hello everyone, welcome to my channel CBSE Class 12 Tips and Tricks. Again, thank you everyone for your support and love, and please don't forget to subscribe and like this video for more videos in future for other subjects. So I hope your English exam was good. Okay, it was I guess easy, and thank you everyone, those who found my content useful. I received a lot of comments and support from many of you. So, and those who did not find it good, or they thought like इनमें कुछ नहीं है अच्छा, so I can't help for that. I tried my best and I'll be working on it every day to improve my content. Okay, but now let's move on to mission physics 95 plus. So we have just one day in hand and we have to work a lot. Now, priorities. Okay, so for physics the priorities are first and the foremost is the derivations. अगर आपका बिल्कुल भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है या फिर यू आर इन अ वेरी सम ट्रबलसम स्टेट, या आपको थोड़ा मतलब नहीं है आपके पासिंग पे कॉन्फिडेंस, सो फर्स्ट थिंग आई विल रिकमेंड यू इज गो फॉर डेरिवेशंस, क्योंकि डेरिवेशन से यू विल स्कोर इजीली 40 प्लस. ठीक है, 30 प्लस तो श्योर शॉट है. अगर आप 2-3 उसके ऊपर बेस न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर लेते तो 40 प्लस कहीं नहीं गए. Then there are important, second is your important numericals of each type, and third is to cover maximum units. ठीक है, तो जिनके सारे units cover नहीं हुए हैं, cover the maximum units. ठीक है, but if you आपको कोई भी आइडिया नहीं है उस यूनिट के बारे में, so leave it right now, because नया कुछ पढ़ने से confusion हो जाएगा, क्योंकि they're all interrelated, तो then leave it. Now let's start with important topics chapter wise. First is electrostatics and current electricity. इसमें सबसे पहला very important is electric flux and Gauss theorem. Gauss theorem is very very important. यहाँ से एक derivation या फिर एक conceptual question आना ही आना है. ठीक है, it's sure shot. So you have plane sheet, infinitely long wire, thin spherical shell, etc. etc. आपको पता है. Then electric field due to point charge, उसमें भी एक derivation आ सकता है. Either of this. Okay, so dipole, field lines, torque on dipole, etc. Then equipotential surfaces, capacitor in series and parallel, energy stored in capacitors, ये सारा कुछ आपका capacitor chapter से important है. फिर resistors, numericals. Now resistors से आपको एक 5 mark का numerical sure shot आना ही आना है. ठीक है, now that can be based on resistors or it can be based on Kirchhoff's law, Wheatstone bridge, meter bridge, potentiometer, यहाँ कहीं से आ सकता है. Now very important thing over here is ये आपको जो meter bridge और potentiometer है, ये आपने आपके practicals जो हुए थे उसमें किया है. So this is very important because nowadays CBSE is stressing on practical based education. तो वो क्या करता है कि आपको एक डेटा दे देगा. ओके, अभी आपके प्रैक्टिकल्स खत्म होके ऑलमोस्ट 15 दिन, 1 महीना हो गया होगा, बट स्टिल यू नीड टू रिमेंबर द फॉर्मूलाज ओवर देयर. वो सेम ही है, वैसे दिए हैं एनसीईआरटी में, बट आपको वो क्वेश्चन जो रहेगा, ठीक है, पेपर में, दैट विल बी लाइक अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जहाँ पे आपको रीडिंग्स दी जाएगी एंड देन यू हैव टू आस्क टू फाइंड आउट द रिजल्ट. ओके, सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी कॉमन नाउअडेज. Then let's come to magnetism, Biot-Savart law, extremely important, VVIP question. यहाँ से एक क्वेश्चन मैग्नेटिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो Biot-Savart law. ठीक है, और कंसेप्चुअल क्वेश्चन, इधर आपको डेरिवेशन आएगा इसका Biot-Savart लॉ का, या फिर एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएगा. एक क्वेश्चन यहाँ से आना श्योर शॉट है. एम्पियर्स लॉ इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. उसके एप्लीकेशंस कौन से सोलेनॉइड्स, साइक्लोट्रॉन. अभी क्या होता है, साइक्लोट्रॉन या फिर सोलेनॉइड से वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन देने लगा है. ठीक है, CBSE, so check that out. Then derivations of parallel current carrying conductors, torque, ampere की जो definition है जो यहाँ से derive होती है, that is very important. ठीक है, वो definition वो पूछता है. ठीक है, then galvanometer is again very important. जैसे आपके potentiometer और meter bridge था, वैसे ही galvanometer, ठीक है, which you have used in your practicals, again is very important. Then let's come to Earth's magnetism. Okay, over there magnetic lines, field intensity, then dia and ferro substances. ठीक है, paramagnetic, diamagnetic and ferromagnetic substances, but that is also important. Then electromagnet, okay, जो आपके होते हैं उसका जो applications है, that is very important. Then let's go to electromagnetic induction. यहाँ पे Faraday's law और Lenz's law very important है. Lenz's law का derivation is very very important. Then eddy currents. ठीक है, eddy currents में आपको give reason type question आता है, यानी कि उसका reason होगा. ठीक है, because eddy currents are present, because they are not. तो ये give reason type question eddy currents से देता है. Self and mutual induction, again उसके सारे derivations, सारे figures same to same आपको करना.
Then let's come to AC, again very troublesome chapter for many of you. इसमें RMS वैल्यू विद न्यूमेरिकल्स, ठीक है, एक न्यूमेरिकल AC से इज श्योर शॉट, ठीक है, वन न्यूमेरिकल इधर 3 मार्क्स और इन 5 मार्क्स कैटेगरी इज श्योर शॉट. तो रिएक्टेंस, इम्पिडेंस, LC ऑसिलेशंस में आपको न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, RMS वैल्यू के साथ आपको न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं. LCR सीरीज सर्किट में वो आ सकता है, रेजोनेंस, पावर इन AC सर्किट्स, वॉटलेस करंट. तो ये रेजोनेंस LCR सीरीज सर्किट में एंड पावर, ओके, तो ये कैलकुलेशन के लिए आपको एक 3 मार्क या फिर 5 मार्क का न्यूमेरिकल आ सकता है. देन व्हाट आर वॉटलेस करंट, इसकी डेफिनेशन याद कर लो, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट. देन AC जनरेटर, ठीक है, इसका सिर्फ आपको वर्किंग पता होना चाहिए, प्रिंसिपल पता होना चाहिए और डायग्राम पता होना चाहिए, ठीक है, दिस मच यू शुड नो. देन लेट्स कम टू EM वेव्स. EM waves में electromagnetic spectrum is very important in this, all your radio waves, microwaves, infrared waves, ultraviolet, X-ray, gamma ray and your visible, okay, visible spectrum, that is also very important. इन सारों के application type क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करने को बोलेगा एक तो, या फिर you have to state applications for say X-rays, ultraviolet, वो सारे दिए हुए NCERT में, प्लीज पढ़ लो. साथ ही साथ उनके जो रेंजेस है, यानी विजिबल स्पेक्ट्रल रेंजेस फ्रॉम दिस टू दिस, ओके, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, जो भी आपको पता है वो सारा कर लो. लेट्स कम टू ऑप्टिक्स. टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन रे ऑप्टिक्स. देन इट्स एप्लीकेशंस, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस, लेंसेज, थिन लेंस फार्मूला, ठीक है, लेंस मेकर्स फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट. आपको एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन दे सकता है या फिर एक छोटा सा क्वेश्चन दे सकता है कि इसको आपका spectacles बनाने हैं, तो how will you use the lens makers formula. Then magnification power of lens combination, refraction, dispersion through prism, इसका जो figure है, ठीक है, scattering into 7 different colors, all that is very important. फिर इसके ऊपर applications, so that is in like scattering of light in sky, etc., microscopes and telescopes and their applications, etc. Then in wave optics you have Huygens principle, very important. वेव फ्रंट की डेफिनेशन और उसका पीछे के सारे प्रूफ्स, ठीक है, विद यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल इज वेरी इंपॉर्टेंट. YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, सभी बोलते हैं इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ऑप्टिक्स. एक क्वेश्चन यहाँ से आना इज एब्सोल्युटली नेसेसरी एंड श्योर शॉट, ठीक है. अभी इसमें से कभी 2 क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है, एक आपका कंसेप्चुअल आ जाएगा, डेरिवेशन आ जाएगा, ठीक है, और एक न्यूमेरिकल आ सकता है, या फिर एक न्यूमेरिकल आपका ब्रूस्टर्स लॉ से, ठीक है, सो ब्रूस्टर्स लॉ से आपका ये एक न्यूमेरिकल आ सकता है. माइक्रोस्कोप्स एंड रिजॉल्विंग पार्ट्स, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट. पोलराइजेशन एंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट, PPL, उसका सारे जो डायग्राम दिए हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है. देन पोलरॉइड्स, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. फिर आ जाता है ड्यूअल नेचर और एटम्स एंड न्यूक्लियर. यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विद एक्सपेरिमेंट आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है. मैटर वेव्स क्या है आपको पता होना चाहिए. डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट का सिर्फ स्टेटमेंट आपको याद करना है, बाकी उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है. एनर्जी लेवल्स, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर साल का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, एक क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है. आइसोबार्स, आइसोटोप्स, आइसोटोन्स की डेफिनेशंस और एग्जांपल्स पता होने चाहिए. अल्फा, बीटा, गामा रेज और उनकी जो प्रॉपर्टीज है, एप्लीकेशन है, वो सारे पता होना चाहिए विद इक्वेशंस. मास एनर्जी रिलेशन पता होना चाहिए. BE पर न्यूक्लियन 2015, 16, 17 कोई भी पेपर उठा लो, एक क्वेश्चन BE पर न्यूक्लियन क्या है ही है, ठीक है, वो जो डायग्राम दिया है वहाँ पे, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. एंड फिजन एंड फ्यूजन एप्लीकेशंस. देन लेट्स गो टू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. यहाँ पे एनर्जी बैंड्स, IV कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायोड, ये तो सारा आपको पढ़ना ही है, यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते हो. PN जंक्शन डायोड, LED, फोटोसेल, सोलर सेल, जीनर डायोड एज योर एप्लीकेशन जो उसका है वो. जंक्शन ट्रांजिस्टर एक्शन, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर. लॉजिक गेट्स में सिर्फ और एंड नॉट नॉर करो, ज़ोर ज़ैर बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है. बैंडविड्थ, प्रोपगेशन, कम्युनिकेशन, मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ये सारों के डेफिनेशन याद होनी चाहिए, ये आता ही आता है. या फिर वो जो डायग्राम दिया है प्रोपगेशन थ्रू स्काई, वो ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रीवियस ईयर्स पेपर्स मस्ट सॉल्व, ठीक है, मैंने भी बनाए थे प्रीवियस ईयर्स पेपर्स, दे स्टिल अवेलेबल, इफ यू वांट यू कैन टेक, 1-2 कल आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, कॉस्ट इज वेरी मिनिमल. बट आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठा के जितना भी प्रैक्टिस कर सकते हो कर लो. फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ्स, इन सारों में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने आप करोगे उतना आपका स्कोर एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा. ट्रस्ट मी, एक्सपीरियंस बता रहा है, इसलिए आपको बता रहा हूँ.
सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, सारे प्रीवियस ईयर्स पेपर्स 2015, 16, 17 के कंपार्टमेंटल एग्जाम के भी पेपर्स डाउनलोड